جذب ہو گئے تو اب اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے دیکھنا ہے تو آپ کے اندر دیکھے، محمد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، جتنے مجھے سارے نبیوں کے نام دیے گئے ہیں الحمدللہ، تو اس وجہ سے اچھا تمام ملکوں کے بابا تو گرو نانک کا چولہا مجھے بھی دکھایا گیا ہے، معراج پہ اللہ تعالیٰ پیارے نے مجھے حضور بھی لے میں کے گیا ہے۔ جرمنی تشریف لا رہا ہوں، تو پیارے حضور بتائیں پھر جو ہے منڈے کو ملاقات ہو سکتی ہے یا ٹیوزڈے کو؟ ملاقات آپ کے متعلق میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو پھر آ جائیں، بسم اللہ۔ پیارے حضور میں تو پچھلے 1.5 سال سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ہاں جی، یہی تو چیز ہے، آپ کو بتائیں نا آپ کی کیا صورتحال ہے، کوئی خوابیں آنا، دعائیں قبول ہونا شروع ہوئی ہیں؟ اچھا محمد ہاں ریاض جی، بھائی، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ دے ریاض دیں بھائی بھی ہوگی۔ میں مولوی صاحب آپ کو ایک ابھی موقع دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ریاض بھائی نے جب باجی نے پوچھا تھا کہ کیا خوشخبری ہے تو اس کے بارے میں ریاض بھائی بتا رہے تھے، تو میرے ذہن میں ساتھ ہی وہ بائبل کی کچھ آیات آئیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ریاض بھائی نے کہا ہے کہ عورتیں بھی نبیہ بن سکتی ہیں، تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا عورتیں بھی نبوت کریں گی۔ تو یہ اعمال جو ان کا چیپٹر ہے بائبل کا، اس کی کچھ آیات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا کہتا ہے کہ آخری زمانے میں اپنی روح ہر طرح کے لوگوں پر نازل کروں گا، اور تمہاری بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے۔ اس زمانہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی اپنی روح نازل کروں گا، اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان سے حیرت انگیز کام کروں گا اور نیچے زمین پر نشانیاں دکھاؤں گا، یعنی دھوئیں کے بادل اور خون اور آگ۔ تو یہ بس آیات شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں۔ اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ریاض بھائی سے مولوی صاحب، تو آپ ان سے اجازت لے کے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں بس یہ بائبل کی آیات شیئر کرنا چاہ رہا صاحب میں پھر بعد میں سوال کرتا ہوں، سوال میرا بڑا اہم تھا۔ اگر وہ جواب دے دے تو وہ پہلی بیعت کب ان کا ارادہ ہے پہلی بیعت لینے کا، یا آج کے تھا۔ دن کو انہوں نے؟ ہو چکے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ تو اب دوسرے اول المومنین میں نہیں شامل ہو پائیں گے، وہ مل گئے ہیں اب حضور کو، بھائی کو۔ وہ اور بندے شامل ہو چکے ہیں۔ ہاں جی تو الحمدللہ۔ ویسے مولوی صاحب آپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ جب شروع میں مجھے بتایا گیا تھا نا خیب سے خبریں، تو اس وقت سینی صاحب کی براڈ پہ آپ نے پہلے بندے تھے جس نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بات بتائی تھی۔ بعض لوگ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو آپ اس وقت بات کی تہ تک پہنچے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ جو میں ایم ایس آر لکھا ہوا ہے اس کا مخفف بنتا ہے محمد صالح ریاض، کیونکہ محمد کا رقم مجھے پہلے مل چکا تھا تو پھر میں نے محمد لگایا تھا ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات اس طرح ہے کہ اپنا احمد بھائی، میں آپ کو بات سناتا ہوں جی جی کہ وہ کہتے ہیں نا دیا سے دیا جلایا جاتا ہے، جی جی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیے سے دیا جلایا ہے۔ انہوں نے پیچھے جتنی بھی خلافت ہے ان کی پیروی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور وہ خلافت کی بھی پیروی کی انہوں نے، ماشاءاللہ بہت اس زبردست خلافت کی تحریریں ہیں۔ پیروی کی ابراہیم بھائی؟ خلافت راشدہ کی، نبی بھائی نہیں خلافت کی پیروی کرتا۔ چلیں جو بھی، لیکن ان خلفاء کے بارے میں انہوں نے جتنا بھی لکھا، چلے میرے الفاظ غلط ہوں گے یا جو بھی ہے، لیکن ان خلفاء راشدین کے بارے میں جو بھی لکھا ماشاءاللہ بہت زبردست تحریریں انہوں نے لکھی ان کے شان کے اندر، ٹھیک ہے، خلفاء راشدین کی، ٹھیک ہے، جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء تھے، اور یہ نام لیتے ہیں جماعت میں سے، اور جماعت کے جو امیر المومنین ہیں ان کے بارے میں ان کے انکشافات دیکھیں، یہ برعکس ان کے خلاف جا کے وہ کہتے ہیں دیے سے دیا جلایا جاتا ہے، یہ دیے جلا رہے ہیں پیچھے والے دیے بجھا کر، ہاں جی، وہ یہ مجھے کیسے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، پچھلے دیے بجھائے جاتے ہیں تو تبھی نئے دیے جلتے ہیں۔
कभी नहीं आते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पिछले भी चलते रहे और नए भी आते रहे। दिए के साथ दिया जलता है, दिया बुझ जाए फिर नहीं आता है। दिया जला के पीछे दिया बुझाना, वो तो फिर आप समझ ले कि नहीं ना, ठीक है। बरियाम साहब, ये आपकी सोच है। असल चीज ये है कि अल्लाह की इताअत। आप अगर जाएं जाके मसरूर साहब, मुझे अल्लाह तो ताला ने मैंने बता दिया तात मसरूर की साहब बात का की नहीं है, मैंने तात की बात की नहीं है, मैंने निज़ाम की बात की है। आप तो निज़ाम से बाहर हैं, निज़ाम। आप तो निज़ाम से बाहर हैं। ओ भाई नहीं, बाहर आपके कहने आप से अपना मैं बाहर नहीं हो निज़ाम, अपना निज़ाम बताएं ना। आप हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के निज़ाम को तो मान नहीं रहे। ओ मेरे भाई, जब बता रहा हूँ आप हज़रत मसीह मौद आप अपना का निज़ाम वजूद। बताएं। देखें, आप हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के निज़ाम को नहीं मान रहे। ओ भाई, उनके वजूद में जब अल्लाह ने मुझे दाखिल कर दिया, हाँ तो जी, फिर मोहम्मद आप के अपना मुकाम पे निज़ाम बनाए पहुंचा ना। दिया, तो देखें, वजूद एक है, आप देखें, तो दूसरा वजूद पैदा कर रहे हैं। देखें वजूद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम भी एक वजूद थे ना, उन्होंने अपना निज़ाम बनाया, ठीक है। आप उनके निज़ाम को, यानी कि आप ही ने अगले दिन मिसाल दिए से दिया जलता ये दी थी, तो मैंने कहा था आप तो दिए से दिया जला नहीं रहे, आप अपना जला अरे कर भाई, पीछे दिए बुझा रहे हैं। देखो, फैसला अल्लाह ने करना कि मैंने आपने करना है। फैसला अल्लाह का चलेगा, हमारा आप नहीं फैसला चलेगा। कर हम रहे अल्लाह हैं के ना, मोहताज हैं, किसी अल्लाह इंसान के के फैसले नहीं। पर तो आप चल नहीं रहे। अल्लाह ने अगर एक निज़ाम बनाया है, आप तो उसको मान ही नहीं रहे। ओ मेरे भाई, मैंने अल्लाह से पूछ के फैसला करना है कि आपके हुजूर, हाँ, प्यारे अब हुजूर, आप नीचे एक अपने सवाल आया फैसले है। पे आ गए हैं। पहले आप प्यारे अल्लाह के हुजूर, फैसले पे थे, अब आप अपने फैसले पे आ गए हैं। प्यारे हुजूर, नीचे एक सवाल आया है राजा जवेद साहब का, वो ले लें। वो कह रहे हैं कि आप मिर्जा साहब के जिला हैं। दोबारा कहिए क्या? वो पूछ रहे हैं कि आप मिर्जा ठीक है साहब के अहमद जिले भाई, हैं अपना या मैं ज़्यादा चाहूँगा मोहम्मद अहमद भाई। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, रेहान भाई। जी अहमद भाई। आवाज नहीं समझ आई क्या? प्यारे हुजूर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। नहीं, मैं अपनी गाड़ लाई हुई है, मैं उधर भी जरा बिजी हाँ, फिर मेरे को दो पास नहीं जरा बैठे ज़्यादा देर। मैं वैसे मैं ज़िल जो है ना, वो एक तमसील है। असल जो है अल्लाह ताला ने जो आपको बताया है, जो वफात पा जाता है उसको उसकी जज़ा मिल जाती है, तो वो ना ही कोई वापस आएगा। तो जो आए थे उन्होंने अपना अमल किया, उनके पास जो अल्लाह के हुक्म है, मय्युतिल्लाह, अल्लाह की इताअत है, उससे में कहीं नहीं लिखा जा कहा अल्लाह ताला ने कि इस बंदे को भी साथ मिलाना है। तो वो उस जो है ना मय्युतिल्लाह, इसके अंदर एक मजमून है, वो अभी मैं नहीं खोल रहा, वो भी अल्लाह ने मुझे बताया हुआ है। तो वर रसूल, रसूल जब अल्लाह ने बताया, अब रसूल जिंदा होता है, आप भी समझदार हैं, पोस्टमैन को रसूल कहते हैं अरबी में। तो रसूल जिंदा होगा, मुर्दा को रसूल नहीं कह सकते। तो आज का रसूल कौन हुआ? तो आज का रसूल जो अल्लाह ताला से गैब से खबर पा रहा है और फिर आगे खबर पहुंचा रहा है, वो नबी भी हुआ, वो रसूल भी हुआ। अगर आप लोग अल्लाह को मानते हैं तो आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, इनाम किसके पास है? नबियों के पास, रसूलों के पास। तो आपने उनसे सीखना है, अताअत करनी है, जज़ा अल्लाह ने देनी है, आपको भी जज़ा मिलेगी, आप भी नबी रसूल बनोगे। तो इसी तरह से फिर जो है नस्ल दर नस्ल इंसान तरक्की करता जाएगा। यार रियाज भाई, आपकी इस बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया कभी भी किसी भी वक्त किसी रसूल से खाली नहीं रही, हर वक्त कोई ना कोई रसूल मौजूद होता है। क्या मैं आपकी बात सही समझा हूँ? मैं ब्राड चल दी पे मैं जरा गल कर ला। हाँ जी, रसूल हर दौर में कोई ना कोई होता है। आप भी रसूल हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं, मगर वो रसूल जो हैं, खुलफा जो थे वो भी रसूल बने, पैगाम पहुंचा रहे हैं, मगर अब नबी, वो नबी नहीं थे। नबी बनना था अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ने बनाना है, वो नबा से निकला है। तो जब अल्लाह ताला गैब से खबरें देगा जिसको, वो नबी बनेगा, फिर वो गैब से खबरें लोगों को पहुंचाएगा, वो नबी और रसूल बनेगा। तो रसूल को नहीं मिलती? पहले तो खबर मिलेगी ना भाईजान, पहले खबर मिलेगी, पहले नबूवत होएगी, फिर आगे अल्लाह आपको कहेगा ना, अगर वो आपको पैगाम फैलाना है आगे। दूसरी तरफ उल्टी तरफ ले लेंगे भाईजान।
یہی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے من یطع اللہ و رسولہ کے اندر سے، جو پیغام پہنچا رہا ہے آج آپ بھی اگر احمدی ہیں پیغام پہنچاتے ہیں، میں ہوں دوسرے جو بھی ہیں، میں پہلے رسول بنا تھا، میں پیغام پہنچایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتا تھا، مجھے چونکہ علم نہیں تھا اتنا باتوں کا، تو اویس بھائی جانتے ہیں، تو اس وجہ سے میں دعا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھے بیٹھے باتیں بتاتا ہے، جاگتے ہوئے باتیں بتاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل یار آپ نے فائٹ کیا، میں نے چھوٹا سا پوچھنا تھا، آپ کی آج پہلی دفعہ کھلی ہے براڈ، پہلی دفعہ لگائی ہے آپ نے؟ نہیں، میں کبھی کبھی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے لگاتا ہوتا تھا، میں یہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں پھر آپ کو بس مبارک دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی ٹیم جوائن کر کے اجازت چاہوں گا، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں پھر آؤں گا۔ یہ بندے کو آواز سنی سنی لگتی ہے۔ یہ ہمارے جانی بھائی ہیں، یہ کینیڈا سے السلام علیکم رحمۃ اللہ، احمد سر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی پہچان دیا میں نے، جانی بنی کیا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ سے گروپوں میں بات ہوئی ہے یا کسی ٹک ٹاک پہ بات ہوئی ہے نہیں احمد سر بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی گروپ میں نہیں ہوں، یا ٹک ٹاک پہ ویسے بات میری ہوئی؟ آواز اتنی، ہاں ٹک ٹاک پہ ہوئی ہے، ایک دفعہ ہوئی ہے آپ سے، ناصر وہ وریان بھائی کی براڈ پہ ہوئی ہے ہاں جی شاید۔ بس دیکھا نا، مجھے یاد ہے۔ بہت پاپولر نہیں ہے جانی نہیں، بھائی، آپ کی جانی بھائی کے تو کتاب محلے میں ارجیت کہتے ہیں، بہت مشہور ہیں لوگ۔ السلام علیکم محمد احمد بھائی۔ وعلیکم السلام علی احمد بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ محمد بھائی آپ نے یہ پہلی دفعہ براڈ لگائی ہے، پہلے بھی لگاتے رہے؟ نہیں، غالباً تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ ہوگی، پر غالب امکان ہے کہ تیسری دفعہ ہوئی ہے۔ چلے میں نے بھی آپ کی ٹیم جوائن کر لی ہے محمد بھائی، جزاک اللہ۔ اس سے آپ کو فالو کر لیا۔ ہوتا کیا ہے ایسے؟ میں نے بھی خیر، ڈالی ہے محمد احمد بھائی، اس سے پتہ نہیں ٹیم ہوتا۔ جوائن کر لیا ہوتا محمد یہ بھائی ہے آپ کہ پیارے حضور کا پیغام جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ ہاں جی، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایم ایس آر بھائی اپنا پیغام، نیاز بھائی مجھے ایک بات بتائے، یہ نیچے جو لوگ عوام جو شر پسند ہے، جو ریکارڈنگ بھی کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے بلاگ بھی کیا جا سکتے ہیں کہ جانے دیں، آپ اپنا پیغام کھل کے بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی جانے دے، اب جب اللہ تعالیٰ نے 3 بار مجھے کہا ہے واللہ خیر حافظ، سبحان یہ اللہ۔ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دیا تو پھر دنیا کا جو کیا ہے، دنیا تو اپنے کرتی رہتی ہے نا تماشے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اچھا، میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ مجھے بھی رسول کہہ رہے تھے، حالانکہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، پر میں بھی آپ کی بات سمجھ رہا تھا کہ آلریڈی کوئی پیغام موجود ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید ہے، اگر میں وہ کسی کو بتا رہا ہوں تو یہ شاید آپ اس وجہ سے رسول کہہ رہے ہیں، مگر پھر بعد میں کوئی اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں نبی رسول میں، یا کوئی اور بات ہے؟ پہلے جو نبی آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور فضلوں کے تحت آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک حجت تمام نہ کر لے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے نبی جو آئے وہ حجت تمام کرنے کے لیے تھے، تاکہ پیغام پہنچے، جن لوگوں نے پیغام آیا پھر انہوں نے نہیں اطاعت کی تو پھر عذاب بھی آئے۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس ایک طریقت موجود ہے، سنت موجود ہے، اب من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت ہے، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، اس خود بھی عمل کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، تو اللہ وہ رسول بنتے ہیں۔ یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے من یطع اللہ و رسولہ کے تحت، زبردست۔ تو جب رسول اچھا کو محمد احمد بھائی، یہ ایک سوال آیا نیچے، یہ سوال ایک آیا نیچے، یہ پوچھ رہے ہیں سید عتیق شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، بنی اسرائیل میں حقیقی انبیاء ایک ہی وقت میں آ جاتے تھے، کیا احمدیت میں بھی ایسے ہی ایک ہی وقت میں کافی رسول آ سکتے ہیں؟ جب میں نے کافی عرصہ پہلے کا بتایا ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان نبی بن سکتا ہے، رسول سے نبی کا مقام بلند ہے۔ ہر انسان میں انہوں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ عورتیں بھی نبیہ بن سکتی ہیں، اور اب تعلیم موجود ہے، عورتیں بھی عمل کرتی ہیں، عورتوں کو بھی اللہ جزا دے گا، وہ بھی نبیہ بنیں گی، اور نبی ایک ابتدا ہے جہاں سے مکالمہ مخاطبہ شروع ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر محمد کا مقام ہے، اس سے کہنا جو ہے نا، ساتھ اس کو لقب دیا جاتا ہے رحمت للعالمین، یہ دونوں لقب مجھے مل چکے ہیں۔
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आप ये इनके थोड़ा सा बताएंगे अपना जनाब बाजी भी सुन रही हैं, आपका जनाब बाजी आपको मुबारक हो, जमात आप अहमद से भी तल्लुक था? जी हसन जन साहब क्या कह रहे हैं आप? इसमें जन भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं ये अहमद भाई जो हैं इनका जमात अहमदिया से तल्लुक था पहले या अभी भी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मसीह इस्लाम के मानने वाले हैं, और हज़रत मसीह इस्लाम का आने का मकसद ही ये था कि ये दुनिया में प्रूव करें कि ज़िंदा खुदा आज भी मौजूद है, जो बातें करता है आपसे, आपके साथ कलाम करता है। तो जो MSR भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मसीह इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए वो मुकाम पा लिया इन्होंने कि अल्लाह ताला भी इनसे कलाम करता है। इन्होंने जमात के खलीफा साहब को कोई पैगाम भेजा, खत लिखा है इन्होंने, कोई उनको इतला दी है? हाँ जी, उनको पहुंच चुका है पैगाम, और ये वैसे भाई गवाह हैं, जब फोन किया था वो सेक्रेटरी साहब को पैगाम पहुंच गया था, वो पहुंच चुका है उनको। अल्लाह ने मुझे बता दिया पैगाम पहुंच चुका है। सब ये है कि अब जिनको अल्लाह को की अताअत में है, मेरी बात मानेगा, जो अपनी मनाता है वो नहीं मानेगा। बिल्कुल सही बात, सही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो ये कि अच्छा सिर्फ नहीं, मेरा साथ दें, रसूल बने, दूसरों को पैगाम पहुंचाएं अल्लाह का, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। आप भी नबी बने, इस दुनिया में आपने नबी ही साले बनना है, तो यहाँ पे रफीक बनोगे तो मरने के बाद भी रफीक हो। खलीफत मसीह खामस सैयदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ की बैत में भी हैं या नहीं? अल्लाह ताला ने बताया था नबूवत के होते हुए खिलाफत की क्या हैसियत रह जाती है। सही बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा। नहीं वैसे हुस्न जन भाई ये बात में वैसे वजन तो है, जब एक नबी आ जाए तो फिर खिलाफतें तो गई ना। नहीं मैंने इसलिए पूछा है मोहम्मद अहमद भाई कि कुछ देर पहले इनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं बैत में हूँ, तो मैंने कहा अभी दोबारा पूछने का था। नहीं, मैं ये नहीं कहा था मैं बैत में हूँ, जमात में हूँ, चूंकि जमात एक इस्लाम है, इस्लाम अल्लाह ने ये भी बताया था अहमदी सच्चा इस्लाम है। हाँ जी माशाल्लाह। बाकियों के मुतालिक जो अल्लाह ने बताया था, जो सच नहीं बोलता वो सच का काफिर, जो इंसाफ नहीं करता वो इंसाफ का काफिर, जो कत्ल करता है कत्ल का काफिर, जो गलत काम करेगा, अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करेगा, वो काफिर बनता जाता है। हर इंसान अपने गिरेबान में झांके कौन से कानून तोड़ता है, तौबा करे, माफी मांगे, अल्लाह से अमल करे, अल्लाह ताला जज़ा देगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यार MSR भाई मेरा एक क्वेश्चन है, पिछले दिनों पाकिस्तान में एक मोहतरमा थी, उन्होंने भी प्रॉफिट दावा किया था, जैसे कि आपने बताया कि आज के दौर में औरतें भी, हाँ जी बेचारी पकड़ी गई, मगर आपने अभी बताया ना कि आज के दौर में औरतें भी नबिया बन सकती हैं, तो क्या वो ठीक थी, वो क्या है सिलसिला, उसके बारे में कोई खबर है आपको? देखिए ना, अगर नबी कहते हैं गैब से खबर पाने वाले को, जी उनको उनसे देखना पड़ेगा उनको क्या गैब से खबरें मिली। ठीक हो गया, जबरदस्त। हमारे साथ शामिल हुए हैं तो आपने भी ये अभी थोड़े लिखे हैं? हाँ जी, पैगाम तो मैंने उनके टिकटॉक पे जो जिनके अकाउंट हैं, मैं उनको तकरीरें करते हैं नीचे पैगाम दे दिया हुआ है। तो हजरत अब्दुल गफार जंबा अलैहिस्सलाम को भी आपने कोई खत भेजा है? उनको जो है ना, एक इंडिया का बंदा है, उसके ग्रुप में मैंने उसको पैगाम दिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अभी कोई जवाब नहीं आया। उस ग्रुप में वो मौजूद हैं। वैसे रियाज भाई मुझे समझ नहीं आई, वो तो आप ही के कंट्री में रहते हैं और आपको तो ड्राइव करके जा सकते हो बैतुल गफार। मैं इंग्लैंड से चला गया था, तो आप तो 5 से 6 घंटे से मेरा सिर्फ जब अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने बता दिया, उनका चेहरा दिखाया और साथ आवाज आई मकर कर रहा है। तो फिर बाद में ये भी दिखा दिया बर्फ की, जैसे एक चेहरे जितनी बर्फ की सिलसिले हैं, वो बर्फ को पिघलने में जितना टाइम है उनको भी इतना ही टाइम है। मिले आपने इंडिया के जरिए रब्ता किया, वो मुसलमान हो गया है, तो उसके ग्रुप में हैं जंबा साहब, तो उनको पैगाम मैंने दे दिया था, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब करेंगे तो हो जाएगी बात। अस्सलाम वालेकुम, 30 सेकंड दे सकते हैं रियाज भाई बात कर लें आप।
पता है कि बारी बारी बात करते हैं। हमारे साथ थिंक लाइक अ मिलियनेयर भाई शामिल हुए हैं, ये कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए हैं। इनको लगता अस्सलाम है वालेकुम। मुसलमान, मगर आज मुसलमान कहलाते हैं। मैं आपको इनका हजरत सवाल है। साहब मैं सिर्फ डेविड भाई, यार वो बात कर रहे साहब हैं, क्या एक सेकंड डेविड भाई वो बात कर रहे हैं। पहले थिंक लाइक अ मिलियनेयर की बारी है, जी उनके सवाल के बाद डेविड भाई की बारी है, फिर जी काइंड जी हार्टेड भाई। मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं सिर्फ होस्ट को अप्रिशिएट करने आया हूँ कि उन्होंने एक नबी का साथ उस वक्त दिया जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा। तो मैं तो उन्हें बस अप्रिशिएट करने आया हूँ कि उनका इतना जज्बा, को इतनी हिम्मत कि वो अगेंस्ट द टाइड जा रहे हैं। तो बड़े ही हिम्मत है माशाल्लाह। थिंक लाइक अ मिलियनर, आप भी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाएं। सिर्फ मोहम्मद अहमद भाई को तो अप्रिशिएट ना करें, मैं आप हाजिरी भी दे दी हौसला है, अफजाई के लिए आएं। मैंने हाजिरी दे दी और है, सुन रहा हूँ मैंने की नहीं, बातें सुन हाजिरी से काम नहीं चलेगा। आप उनसे कोई उनके मुतालिक पूछना चाहें, उनके दावे के मुतालिक पूछना चाहें। हाँ जी, वो अभी भाई तो बात आप करें पूछें मुझसे भी। उनसे, मैं और अगर देखिए आप मसला उनकी पता है क्या बातों है, में सच्चाई जानते हैं, मानते हैं, तो आप ईमान भी ला सकते हैं। लेकिन अली भाई मसला मेरा ये है कि मैं तो नहीं मानता कोई आ सकता है नबी, इसलिए मेरा ये सवाल बनता नहीं है उनसे। इसलिए मैं बाकी ऑडियंस को कहूँगा पूछें, क्योंकि तो मैं फिर तो नहीं हौसला मानता। अफजाई किस चीज़ की करने आए हैं आप? मैं तो सिर्फ मोहम्मद अहमद साहब की करने आया हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह मोहम्मद एक अहमद साहब की उस चीज़ की हौसला अफजाई करने आए जिसको आप मानते ही नहीं। भाई आपके उनसे लिए अल्लाह का अपने पैगाम है। अल्लाह ताला ने कहा है ये सबके तो लिए, आपकी मरना नहीं तो मत नहीं भाई, अल्लाह सोचें, का पैगाम सुन ले प्लीज। मरना नहीं तो मत सोचें, मरना है तो सोचें क्या होगा मरने के बाद। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपने भी मरना है एक दिन, आपके पास वक्त इस दुनिया में है अमल करने का। मरने के बाद फिर दोजख में आपको सजा भी मिलेगी, साथ इबादत भी करनी पड़ेगी। अगर इसी दुनिया में अल्लाह की बातों पे चलोगे, कुछ दिन पहले इस रमज़ान में अल्लाह ने बताया था अल्लाह के ला के साथ, अल्लाह के कानून के साथ, हम अल्लाह के कानून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में जन्नत बन जाएगी। क्यों कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, जंगें ख़त्म, असला की ज़रूरत ही नहीं, टैक्स कम हो जाएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जो मदनियात दी हुई हैं, तेल, जो सोना चांदी, उसको बेच के इंसानियत की खिदमत की जाएगी। हर इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इंसान इसी दुनिया में जन्नत बनाएगा तो फिर अगले जान भी जन्नत मिलेगी। अगर यहाँ पे दोज़ख में है तो अगले जान भी दोज़ख ही है। सोना वगैरह आपको सारा मिल जाएगा। वेयर आर यू? यार मुझे नहीं चाहिए सोना वगैरह, मुझे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए कि वो मिलती रहे बस। और रियाज भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो थिंक लाइक अ मिलियनर भाई है ना, इनके लिए आपने कोई, मुझे तो पता है कि आप अच्छा ही सोचते हैं, सबके बारे में मोहब्बत का ही आपके दिल में जज्बा है, मगर ये भाई थोड़ा नादान है। ये नीचे सवाल कर रहे थे और ऊपर आके कह रहे हैं मेरा सवाल कोई नहीं है, मुझे अप्रिशिएट करना है। और सवाल उनका ऐसा था कि वो खुद इस चीज़ को नहीं मानते सही। वो कह रहे हैं कि अब आप ज़िली बरूजी नबी हैं, ये नीचे सवाल था भाई का, मगर ऊपर आके सिर्फ उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए जज़ाकल्लाह। और अब उनका ख्याल है कि क्या लगा किसी को नहीं भेजेगा। तो रियाज भाई इसके बारे में बताएं कि ये अल्लाह ताला को क्यों ऐसा समझते हैं कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में बताएं। इनका कसूर नहीं है, चूँकि अल्लाह ताला ने जो बताया ना सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के अंदर से, अगर बड़े मकजूब हों तो छोटे भी मकजूब ही होते हैं। तो इनको जो इनके वालिदैन ने नहीं बताया तो इनको समझ नहीं आई दीन की। अगर इनके वालिदैन खुद इनाम याफ्ता होते तो इनको बताते, तो इनको इल्म होता, ये भी अमल करते थे। ये खुद इनाम याफ्ता हो जाते, ये बात करते ही ना। ये वजह है ये। अच्छा, मैं अभी डेविड भाई की तरफ चलते हैं। डेविड भाई का क्वेश्चन था, उसके बाद फिर काइंड हार्टेड भाई की तरफ चलेंगे। जी डेविड भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो चीमा साहब से कहना था, गुस्ताफ शात्सोफ में रहते हैं कील में, जंबा साहब, तो चले जाएं किसी दिन उधर, मुझे भी साथ ले जाना। मुझे देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से पूछ के करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने कहा जाके मिलना है तो मिल लूंगा। वेरी गुड। जबरदस्त। तो देखो ना आज ही ख्वाब में मुझे नज़ारा नज़र आया था, बहुत सारे लोग जो है ना मेरी बात, मैं उनको नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास जमा हैं, मुझे देख रहे हैं। तो देखो आज वैस भाई ने भी बुराड़ लगा ली, मैं भी आ गया, लोग वो ख्वाब पूरी हो गई। अच्छा, ये पहले बताया था अल्लाह ताला ने आपको? तो आज मैंने आपको बताया नहीं था जब आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे। हाँ, सही बात है।
अच्छा सही बात है। वो अच्छा अच्छा, रियाज भाई, वो जो थिंक लाइक मिलियनेयर भाई आए थे ना, वो दुआ की दरख्वास्त करके गए हैं कि आप जो है हमें दुआओं में याद रखें, तो आप उनको दुआओं में याद रखें। जो भी सुन रहा है ये नोट कर ले, रिकॉर्डिंग कर ले। अल्लाह ताला ने अब मुझे 2 बार ये पैगाम दिया है, मैं लोगों को बताऊं। मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, अलहम्दो वसलाम इन्ना का हमीद मजीद। जिनके मुश्किल हालात हैं, ये अल्फाज मुझे विर्द करने के लिए मिले हैं, इनका विर्द किया करो, अल्लाह ताला फजल करेगा। रियाज भाई, इसका तर्जुमा भी कर दें, कुछ लोगों को अरबी नहीं आती तो उनको आसानी होगी याद करने में, और दोबारा रिपीट भी कर दें। ये इल्हामी कलाम है ना जो में तो ज्यादातर उर्दू की अल्फाज हैं, अल्लाह मेरे, मौला मेरे, किबरिया मेरे, रहीम मेरे, सारे मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, मौला मेरे, रहीम मेरे, किबरिया मेरे, अलहम्दो वस्सलाम इन्ना का हमीद मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसमें से आता है, तो वस्सलाम और सलामतियाँ तमाम, इन्ना का हमीद मजीद जो बुजुर्गी वाले, बुलंद बुजुर्गी वाली शान वाला है। जबरदस्त। मौला मेरे, रहीम मेरे, साहब मुझे थोड़ा सा ही अलहम्दो अस्सलाम हो। मौलवी साहब, अगर आप गुस्ताखी माफ करेंगे, किड भाई कुछ कहना चाह रहे थे, पहले कैंडिडेट भाई की बात सुन लें, फिर आप कर लीजिएगा, और इसके बाद मौलवी साहब की बात। जब मुझे ये अल्फाज मिले थे अलहम्दो वस्सलाम इन्ना का हमीद मजीद, मैंने बाद मरबियान से इधर उधर पूछा, उनको भी नहीं इल्म था, तो फिर मैंने दुआ शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के बाद मुझे बताया, रसूल करीम को विर्द करने के लिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम दिया गया था, तुझे अलहम्दो वस्सलाम इन्ना का हमीद मजीद दिया जाता है। तो ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। बहुत आला, बहुत आला। जी काइंडा टिड भाई, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी आप देखिए, जो भी दावा करते हैं, मैं जनरली पूछता हूँ कि उनका अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है उनका कोई अलग होता है, क्या आप मानते हैं अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है? अल्लाह है, अल्लाह मुझसे कलाम करता है। आपने भी अगर अल्लाह से कलाम करना है, आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए, तो मेरी बात मानो, मैं बताता हूँ, उस तरह से अमल करो, अल्लाह ताला आपसे भी कलाम करेगा, वो आपका भी मालिक है। आपकी बात मानना पड़ेगा? नहीं, आप भी नबी बन सकते हैं। आप भी नबी बन सकते हैं, नबी तो एक इब्तदा है, इससे बढ़कर बन सकता हूँ। लेकिन सर वो उसका क्या करे कि जो आदमी पहले ही गुनहगार हो, जिस तरह मेरे जैसा आदमी बड़ा गुनहगार है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए रास्ता खोला। अल्लाह को पता है बंदा कमजोर है, कमजोर पैदा किया गया है। हाँ। अगर या करना बदो या करना सही, जब आप नमाज में बार बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, तो अपनी मोहब्बत का नूर अता करेगा। मुझे भी अल्लाह ने बताया था, मुझे अपनी मोहब्बत का नूर अता करने वाले। तो इंसान के अंदर एक ताकत, नूर अल्लाह की तरफ से मिलता है, इंसान के अंदर ताकत आती है, इंसान बुराइयों को छोड़ता जाता है। और मैं नबी बन के क्या करूँगा? लोगों की इस्लाह करूँगा। तो नबी बनोगे जब आपको अल्लाह ताला फिर ऐसी ऐसी नज़ारे दिखाएगा, तो आप दुनिया की चीज़ों का लुत्फ़ आपको ख़त्म, ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी, अल्लाह की मोहब्बत में आप पड़ जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजूर, ये एक बात आपसे पूछनी थी कि ये आप जो है वो रोज आया करेंगे मोहम्मद अहमद साहब की ब्रॉड पे, और आपको जो पैगाम हक मिला है ये दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप रोज इन लोगों से खिताब करेंगे हजूर? इंशाअल्लाह जो मोहम्मद अहमद रोज आए ना, उनको बुला ले आप, जो अल्लाह का मंजूर इंशाअल्लाह। मैं दूसरी बरातों में भी जो जाता हूं, वादा किया वो निभाना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप रोक में के जमाना चाहे रोक के खुदाई तुझको आना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी पैगाम मैं दे रहा हूँ, साथ टिकटॉक पे भी दे रहा हूँ, दूसरे अब फेसबुक पे उस पर भी। मोहम्मद भाई देखें, मोहम्मद भाई वो जो थिंक लाइक मिलियनेयर था ना, जी वो तो बरी हो गया क्या कि भाई नबूवत के सिलसिला जारी नहीं है, लेकिन उसने अल्लाह मियां को मतलब वो बिल्कुल बंद कर दिया ना, कि अल्लाह बंद कर दिया। वो तो मिर्जा साहब ने भी वैसे जो अपनी वो थी ना, एक बात में तजाद था, वो जो थिंक मिलियनर हैं उनकी बात में तजाद था। एक तरफ तो वो हौसला अफजाई करके गए, दूसरी तरफ वो इस बात के कायल ही नहीं। वो हौसला अफजाई हमारे प्रिंसिपल के तहत करके गए ना, अपने प्रिंसिपल के तहत तो बिल्कुल बंद थी। नहीं, हमारे प्रिंसिपल के साथ तो हौसला अफजाई जो है उनको नहीं बनती, वो तो हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनके तो प्रिंसिपल अपने असूलों पे वो कायम नहीं है, तो हमारे असूलों को क्या करना? इमाम साहब, मैंने तो अपने असूलों पे कायम बात हुई थी जी। हाँ यार, मौलवी साहब का क्वेश्चन है। मौलवी साहब, कि आपने कुछ अंजारी जो ख्वाब थे वो मुझे बताए थे,
उस वक्त आपने बैत नहीं ली थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप बैतें कुछ ले चुके हैं जी जी इफराद की। जी जी। तो वो लाइव बैतें ली या कि प्राइवेट में बैतें ली हैं आपने? प्राइवेट में भी है, लाइव में, इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीफोन। अच्छा अच्छा। तो आप ये जो आपको इल्हामात हो रहे हैं, आप लिख रहे हैं या सिर्फ अभी तक आप जी जी, उनको ये रिकॉर्ड ही करते हैं? रिकॉर्डिंग भी है, लिख भी रहा हूँ साथ में। कोई एक सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना ऐसा इल्हाम बताएं जो वो 1 मिनट काइंड आर्ट भाई, 1 मिनट चीमा साहब, लास्ट जो है ना वो बता दें कि आपका इनकार कुफर होगा या आप किस पलड़े में हमें डालेंगे, और इसके साथ दूसरा ये जोड़े कि आपको क्या इमाम महदी का भी खिताब मिल चुका है या नहीं मिला। ये दो सवालों के जवाब देते हैं, मेरी इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। इमाम मेहदी तो आप भी बनते हैं, उसकी अगर तफसीर की जाए तो देखना यह है कि अब अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद का मुकाम दे दिया है। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ किया गया, और कलमे के अंदर मेरा मुकाम है। अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो बात पा जाते हैं उनको जज़ा मिल जाती है। तो अब आज के दौर में मयुतिल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत है। आज के दौर का रसूल कौन है? वो अपनों में तलाश करो, बाहर देखो, जहाँ पे कदम मिले उसकी इताअत करो, अल्लाह का हुक्म है। सही है। ये रियाज भाई अगर नहीं, मेरा जवाब नहीं दिया इन्होंने। आपका इनकार कुफर होगा या आपको क्या उसके बारे में बात करेंगे? मेरी बात का इनकार कुफर नहीं है। मेरे पास जो अल्लाह का हुक्म है उसका इनकार करोगे तो कुफर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मौलवी साहब जो नहीं है, आप अगर ये बात नहीं मानेंगे। बहुत आला बात कर दी इन्होंने, वाह कमाल कर दिया, बहुत आला बात की इन्होंने। हाँ जी, तो जहन्नम से बचना है तो भाई की बात सुने। इनकी बात का इनकार कर सकते हैं लेकिन वो बात का इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ जी, अल्लाह की बात का इनकार नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे साथ शामिल हुए हैं सिद्धू भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उसको मैंने मैसेज किया, उसका जवाब मेरे ख्याल में चेक करता हूँ। अली भाई आप वो तो पता नहीं, जब भी उनको कॉल आती है वो अली भाई भी ये म्यूट लगा देना। हाँ जी, मैंने कर दिया। नहीं हुए म्यूट। ओके, कर दिया। सिद्धू भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आपका कोई सवाल है रियाज भाई के साथ? सबके लिए अल्लाह का पैगाम है, मैं पहले भी दिया हुआ है, फिर दोहरा देता हूँ। अल्लाह ने कुछ अर्सा पहले बताया था, सब एक हो जो, बिकॉज गॉड इज वन। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से ये जंगें वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। जहाद का गलत मतलब जो किया गया है, उन हिंदू ईसाई यहूदी डरते हैं अगर मुसलमान ताकतवर हो गए तो ये हमें मारेंगे। इनको ताकतवर होने ही ना दो, उनको समझाओ हम आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि मालिक एक है। तो हमने कोई लड़ाइयाँ नहीं करनी, कोई जंगें नहीं करनी, हम एक दूसरे की खिदमत करेंगे। अगर नहीं दीन समझ आता वो आपका अल्लाह का मामला है, हमने कोई कत्ल नहीं करना। इस तरह से उनको समझाओ तो बच जाओगे, नहीं तो फिर वो बहुत ताकतवर हो चुके हैं मुसलमानों से। बिल्कुल। आप प्रिंस बिन सलमान के पास कब जा रहे हैं? आपको जाना बहुत लाजमी बनता है। नहीं, उनके पास क्यों जाना है हमने। रियाज भाई, ये नीचे कुछ सवालात आ रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कि जो सामीन हैं उनकी थोड़ी कन्फ्यूजन है। उनको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि कादियानी नबी जो है, नहीं पीछे एक मैसेज था, वो कह रहे हैं कि रियाज भाई उसी तरह नबी है जैसे जो हज़रत मसीह इस्लाम है। तो आप क्लियर करें कि नहीं आप हकीकी नबी हैं, हुजूर गैर हकीकी गैर मुस्तकिल थे। वो भी नहीं, वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानते थे। मैं भी उसी सुन्नत को मानता हूँ। असल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना बानी इस्लाम है। अब ला नबी आबादी के मतलब अल्लाह ताला ने बताया था, रसूल करीम ने जब ला नबी आबादी कहा, उनको इल्म था कि मेरा मकाम क्या है। अब उनको इल्म था कि मैं शरीयत वाला नबी हूँ। अब शरीयत वाला नबी नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें ये समझना होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना शरीयत वाले नबी हैं, उनका मकाम बुलंद है। हम उम्मती नबी बनेंगे उनकी इताअत से। जबरदस्त तो वही कर रहे हैं जो हाँ जी, हज़रत मसीह इस्लाम वाली बात कर रहे हैं। मगर पता नहीं क्यों आप कल कह रहे थे कि आपका मकाम बिल्कुल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है या उससे बढ़ के भी है। ये मोहम्मद जो है ना, ये एक मकाम है। अल्लाह ने मुझे बताया मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हाँ जी। तो अल्लाह ने बताया था ये मोहम्मद एक मकाम है, वो एक शख्सियत का नाम नहीं है। ठीक है।
تو وہ جو ہم احمدی بھی تشریح کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا یا وہ بیٹے سے شادی کی بہو سے شادی کی تو اس وجہ سے یہ آیت ہوئی نازل ہوئی، تو وہ بھی اس کا مطلب اس طرف بھی ہو سکتا ہے، مگر جو اب بتایا اللہ تعالیٰ نے محمد 2 مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد ایک مقام ہے اور مقام کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ تو اب آپ کے پاس وہ والا مقام ہے یا اس سے آگے ہیں آپ؟ بتایا تو ہے مجھے محمد کا بھی مقام مل چکا ہے، آج دوسری بار اللہ تعالیٰ نے محمد کہا ہے۔ یار ایک تو ہنس کے گستاخی کر دیتے ہیں لوگ ہر ساتھ۔ یار وہ نہیں، میرے پاس وہ شرارت کر رہا تھا کوئی بچہ، اس کی وجہ سے ہوا ہے، بھائی کی بات پہ نہیں ہوا۔ اور ریاض بھائی وہ بھی بتائیں نا، وہ جو معراج کا واقعہ تھا کہ حضور کو ایک خاص جگہ تک جا سکے، آپ آگے بھی ہو کے آئے ہیں جہاں پہ رشتے کے پر جلتے ہیں وہاں پہ تو زیادہ دور گئے ہیں۔ ہاں جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ معراج میں مجھے بھی لے کے گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے دکھائے گئے تھے بہت ہی لمبے قد، تقریباً 3 منزلہ جیسے مکان ہوتے ہیں نا، اتنے اونچے قد کے لوگ ہیں، اور میں ان کے نزدیک بہت چھوٹا ہوں، پھر میرا بھی قد بڑا کیا جاتا ہے، اور ان سب سے اونچا میں ہو گیا ہوں، پھر وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے اوپر سے میری حد نظر جہاں تک جا رہی ہے وہ اسی طرح لائنیں بنی ہوئی ہیں، نماز ہونے لگی ہے، اور پھر میں سامنے مکہ ہے اور میں بھی 3 بندے ہیں ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، اور میرے دائیں طرف 2 انسان ہیں، اور میں جب پاؤں اپنا محسوس کرتا ہوں نیچے فرش پہ تو بہت ہی نرم ملائم جگہ ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر مجھے سمجھایا جاتا ہے دنیا کے فرش میں اور جنت کے فرش میں یہی فرق ہے، جنت کا فرش نرم ہے، دنیا کا فرش سخت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے مکہ کے اندر وہ جو میرا وہ کہہ لیں حج بھی کہہ لیں، جو ایک معراج پہ گیا ہوں، حج بھی ہو گیا میرا ایک طرح سے، شو کے سامنے مکہ دکھایا گیا۔ پیارے حضور وہ 3 لوگ کون تھے؟ وہ نہیں نظر آیا اس وقت، وہ چونکہ پیغام مقصد ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دکھانی ہوتی ہے پھر وہ چہرہ نظر آ جاتا ہے، ورنہ پیغام ہوتا ہے، پیغام سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ریاض بھائی اس بات پہ غور کریں، شاید وہ میں اور میرا ایک دوست، آپ کو پتہ ہے نا کون سا، وہ اور تیسرا بندہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے۔ نہیں وہ ابھی وہ نہیں، آپ دونوں کا بھی نہیں ہو سکتے وہاں پہ، آپ کوشش کرو زیادہ۔ میں بھی ایک سوال کر سکتا سنوں؟ نہیں آپ کے دوست کی تو ملاقات ہو چکی ہے نا آلریڈی۔ ہاں جی ان کی ہو سکی ہے، میری صرف ویڈیو کال پہ ہوئی ہے، اور میں نے جانا۔ محمد احمد بھائی میرا بھی ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی ضرور کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ نبی کہتے ہیں ماشاءاللہ حضور صاحب جو ہے، تو حضور صاحب آپ کا والدہ کا نام، آپ کی والد صاحب کا نام، اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا نام، آپ کی علمی تعلیم کتنی ہے، ایجوکیشن برنگ آپ، یہ کوئی اس سے دیکھیں یہ فیملی کے جو نظر نا سیکورٹی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دکھایا ہوا خواب ہے اس کی وجہ سے میں نہیں شو کر رہا۔ ہاں تو باقی پتہ کیا یہ بابا جانی بھائی بتائیں اپنے بارے کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں پیارے بھائی جو نبی ہوتا ہے نا اسے دنیاوی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا نام ہے، کیا نام رکھا ہوا آپ نے؟ بابا جانی۔ بابا جانی صاحب جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو کلام موجود ہے آلریڈی، جس کو ہم محکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر بھی جو ہمارے سپریم ہیڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیرنٹس کا نام بالکل نہیں بتایا ہمیں، ان کے فیملی کا نام نہیں بتایا ہمیں، تو وہ تاریخی پس منظر میں آ گئی تو ہمیں پتہ ہے، ورنہ ہمیں وہ بھی اتنا بتا دیتا ہوں، میرے والدین بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے تلیا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے تلیا تھی، اور مرنے تک دم تک پڑتی رہی ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک دن پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ مل جاؤ، تو میں نے کہا آؤں گا ملنے کے لیے، مگر اس میں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا حکم ہے اگلے دن پاکستان پہنچا ہوں گا، اگلے دن میں وہ وفات پا گئی اور میں اگلے دن پاکستان پہنچ چکا تھا۔ اچھا تو آپ کی ملاقات ہو گئی پھر؟ نہیں وہ وفات پا گئی تھی، پھر جا کے میں نے شمولیت کی تھی۔ اچھا دفین میں صرف شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے حضور آپ کے والد صاحب بھی نبی تھے؟ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک دفعہ دکھایا تھا، ہاتھ جیسے آسمان سے آیا ہے، تو دعا پریشان تھے تو دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے تھما ہے ان کو، تو اس کے بعد الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حیات ہے؟ ہاں جی احمد بھائی ڈیوڈ بھائی کو موقع دیں، وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے تو ڈیوڈ بھائی آپ جی السلام علیکم۔
जी चीमा साहब, मैंने पूछना था, आपने आगे ये आयत 40 रखी थी सूरा की, माकाना मोहम्मद अबा वाहता मिनकुम, तो अगर इसके साथ सूरा कौसर पढ़े तो फिर तो काम सीधा नहीं होता। उसमें बहुत सारे मुझे अल्लाह ताला जो बातें बता रहे हैं, एक जो मय्यतिल्लाह व रसूला की आयत है, इसमें से मुझे 9 तरह से बातें बताई हैं। तो एक आयत का मुख्तलिफ तर्जमे होते हैं, बात जो हमें समझ आती है हम उतना ही समझ सकते हैं। मतलब सूरा कौसर में आप जो है वो क्या समझते हैं, इन शानिया का होवल अबतर कौन लोग हैं, फिजिकल है या वैसे? डेविड भाई एक सेकंड जरा, इसके मतलब अभी अल्लाह ताला ने बताया नहीं। वैसे आज मैं नमाज पढ़ा रहा था ख्वाब में, तो इन्ना तना का कौसर की मैं सूरत ही वहाँ पे तिलावत कर रहा था। MSR भाई एक सेकंड रुके। जी जी। ये नीचे जो जिशान नामी बंदा है, मैं उसको हंसने से मना नहीं करता, एंजॉय करने से मना नहीं करता, मगर अभी एक दफ़ा और भी अगर बदतमीज़ी वाला कोई भी कलमा किसी के लिए भी इस्तेमाल किया है मैंने, तो मैं ऑनेस्टली मैं ब्लॉक करूंगा। तो आपको इन लफ्ज़ों से गुरेज करना है किसी के लिए भी। अवैस भाई, अगर कोई कहता है कहने दो, उसको पैगाम पहुंचने दो, हमारा काम है पैगाम देना। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके लिखने से कुछ नहीं होगा। मुझे अल्लाह ने बताया था इंसान के अमल ही जाहिर कर देते हैं वो मखजूब है किस नसरात मुस्तकीम। डेविड भाई ने जो बात की है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें, फिर मेरा एक सवाल है। हाँ डेविड भाई अब आप कंटिन्यू करें। जी, ये जो इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बे का वन हार है, ये फिजिकल है या वैसे ही मतलब एक हौसला दिया गया? और इन्ना शानिया हवल अबतर जो है ये लोग भी फिजिकल है या वैसे ही एक कौम को बेलाद कहा गया? देवर भाई मैं माजरत चाहता हूँ, इसके मतलब हमें मुझे नहीं समझाया गया, जब समझाएगा अल्लाह ताला फिर बता दूंगा। वेरी गुड। देखा, ये होती है ऑनेस्टी डेविड भाई। जितनी बात अल्लाह ताला ने बताई उतनी करनी है, जो अल्लाह ने नहीं बताई वो नहीं करनी, और यही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया। अभी आगे रेवलेशन होंगी इनकी, तो वही करते हैं। प्यारे हुजूर, वो नीचे एक सवाल था सिद्धू सियालकोटी साहब का, वो कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाएगी या नहीं होगी, कोई अल्लाह की तरफ से पैगाम आपको मिला हो? दुआ तो यही है, चूँकि जब ये हुआ जंग रुकी है उस दिन यहाँ पे कर रहे थे वो ना एक जुलूस निकाल रहे थे ईरान वाले लोग, तो मैं भी पास खड़ा देख रहा था, तो मैंने वहाँ पे खड़े खड़े फिर दुआ शुरू की और दर्द दिल से दुआ की, और उसमें मैंने रोया भी थोड़ा सा। तो जब उस हालत में मैं दुआ करता हूँ मेरी दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने फजल किया। फिर मैं जब थोड़े अरसे के बाद मैं रात को जब खबर सुनी तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह यही दुआ की थी, या अल्लाह फजल का जंग रुक जाए, लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो जंग रुक गई। असल मकसद अब ये है कि इंसान आपस में अकल से काम लें तो रुक जाएगी, अगर नहीं भाई शैतान नहीं बन जाएंगे तो शैतान आपस में नफ्से हमारा में रह के लड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियाज भाई, पहले लोग सोच रहे थे हुजूर की दुआओं से ये जंग रुकी है, पर ये तो अब हकीकत खुली है कि आपने रोकी है। नहीं तो आसिम मुनीर साहब तो गए काम। बहुत आला। आसिम मुनीर साहब का भी नाम है, असल चाइना का अंदर हाथ है। अच्छा, आपका नहीं है? वो तो देखो हम दुआएं करते हैं, वसीला अल्लाह ताला बनाता है। हाँ जी, अच्छा, ये है ना बात। तो ये चीज़ देखो ना, अब मैं बता रहा हूँ सब एक हो जो बिकॉज गॉड इज वन। उर्दू में इंग्लिश में इल्हाम है ये। तो आप लोग अगर अल्लाह को मानते हो तो जिस रास्ते पर इनाम मिल रहे हैं सारे उस रास्ते पर इकट्ठे हो जाओ, सारे रसूल बनो, सबको पैगाम पहुंचाओ। सारे मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएंगे रास्ते पे ताकत बन जाएंगे तो जंगें रुक जाएंगी। नहीं तो आगे पाकिस्तान की भी बारी है, सऊदी अरब की बारी है, दूसरे मुसलमान मुल्क जो है ना उनकी भी बारी है। नहीं तो ये आपको तो फिर सबसे पहले उनके पास पहुंचना चाहिए, वो जो सऊदी प्रिंस सलमान है, उनको जाके वो मैंने पैगाम लिखे हुए हैं। आगे चीज उन्होंने मेरी बात नहीं माननी, वो अगर इतने समझदार होते तो अब तक बात मान चुके होते, समझ जाते इकट्ठा होना है वो। लेकिन अल्लाह ताला की जो सपोर्ट है आपके साथ नहीं है, तो वो देखे जब कौमें नाफरमान हो जाती हैं अज़ाब उस वक्त ही आते हैं। मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना जब था ना तब भी हजूर ने बड़ी दुआएं की थी और हजूर की दुआएं रंग लाई थी और कोरोना खत्म हुआ था।
हाँ जी। हाँ जी। रियाज भाई आप अपना जर्मनी वाला इल्हाम बताएं, नीचे किसी को मैंने जलाना है, जो जो जर्मन लैंग्वेज में आपको अल्लाह ताला ने इल्हाम तो दिया वो है। मैंने डायरी में लिखा है, मैं बता देता हूँ। वी as in zand, हम मिट्टी हैं। हजूर राम राम से बताए ना ताकि लोग विया जिंद जंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अहमद भाई आप इसकी ट्रांसलेट कर दें। हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियां साहब अच्छा मैं ना जब इनको ये इल्हाम हुआ था ना, पहले भी मैं इनको बड़ा सुनता था, जब इनको जर्मन के अंदर ये इल्हाम हुआ है ना, जर्मन के अंदर जब ये इल्हाम हुआ है ना, जाके देखोगे ना छोटे छोटे रेत गुजरे बन जाते हैं। प्यारे हुजूर माजूर चाहता हूँ मोहम्मद अहमद भाई, जब ये इल्हाम हुआ ना इनको जर्मन में, पहले भी आपको पता है ग्रुप में जो है इनके वो इल्हामात में सुनता था और साथ लिखता भी था, और यकीन तब आया जब जर्मन के अंदर हुआ, और बड़ा प्यारा, पूरी दुनिया को ना उन्होंने तीन लफ्जों में बंद कर दिया कि हम सब मिट्टी हैं। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। सही बात है, सही बात है। मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाना या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बास साहब कोई नीचे हैं, पागल हो गए हैं, सेम कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं। खत्म नबूवत का नया नारा ला ताज़ा नबी बादी। रियाज भाई एड्रेस करें, ये क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है बंदा? मस्त लग रहा है मुझे ये कोई भाई। ये आपके सामने जो है वो रियल टाइम नबी बैठे हुए हैं, आप हमें क्यों टॉन्ट कर जा रहे हैं? हाँ इज्जत से खिताब करें। अल्लाह ताज़ा नबी बाद ही उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया है। तो ये है कि अब ईसा भी मैं हूँ, मूसा भी मैं हूँ, हारून भी मैं हूँ, याह्या भी मैं हूँ। अब अल्लाह की यही रज़ा है कि मेरी इताअत की जाए, और जिस तरह से मैंने अमल किए हैं, यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं का ख्याल रखो, इंसानियत की खिदमत करो, तबलीग करो, तो इससे अल्लाह ताला जज़ा देगा। जब आपको अल्लाह ताला जज़ा देगा, जब अल्लाह ने बताया था जब इनाम मिलते हैं तो ईमान पैदा होता है। अभी जितने भी अहमदी हैं या मुसलमान हैं जो खुद को कहते हैं, उनको सच्ची ख्वाब आना, दुआ कबूल होना शुरू नहीं हुआ, उनके पास ईमान ही नहीं है। सारे अपने अपने गिरेबान में झांक ले, क्या उनके साथ अल्लाह ताला इस तरह का सलूक रखता है? अगर नहीं तो फिर वो अपनी फिक्र करें। सही बात है। नहीं रियाज भाई इनको माननी चाहिए आपकी बात है। जब हम बिलीव ही ये है कि अल्लाह ताला आज भी कलाम करता है, तो इनको लड़ना नहीं चाहिए किसी को भी आपके साथ, खास तौर पे किसी अहमदी को नहीं लड़ना चाहिए। पर मसला ये आज का तो इंसान अल्लाह को नहीं ना मान रहा, अपनी मना रहा है। जब कोई अहमदी जो है ना वो कि अल्लाह और रसूल की इताअत करने के नतीजे में इनाम मिलते हैं, और आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चारों इनाम मिल चुके हैं, तो अहमदी को किसी को नहीं आपकी मुखालफत। मोहम्मद अहमद साहब कोई अहमदी उनसे नहीं लड़ता, और आप ये बात बार बार ना दोहराएं। जो चीमा साहब ने फरमा दिया है कि जो उनके ऊपर नज़ूल होता है कलाम, तो वो अगर कुरान करीम के ख़िलाफ़ होगा तो उसी का इनकार करेंगे, वरना किसी को ज़रूरत होगी कि वो उसका इनकार करें। जब ये अल्लाह ताला की तरफ बुलाएंगे, तौहीद का प्रचार करेंगे, तो उन्होंने खुद फरमा दिया है कि मेरा इनकार कोई कुफर नहीं है, जो मेरे ऊपर नाजिल होता है उसका इनकार कुफर होगा। तो उसको फिर परखना पड़ेगा क्या वो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है या कुरान मजीद के मुताबिक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं जी MSR भाई, अव्वलुल मोमिनीन में से आपको मौलवी साहब भी मिल गए हैं। वो तो उनको पता है, उन्होंने मुझे जो शुरू में 2 ख्वाब सुनाए थे वो किसी खास बंदे को सुनाए जा सकते हैं। तो वो चीमा साहब ने मुझे बहुत पहले, और जब वो सैनी साहब की ब्राड के ऊपर बात हुई मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, तो हमने नबूवत की को डिफाइन कर दिया था उस वक्त। ये चीमा साहब मेरे हाल मौजूद थे उस वक्त। देखिए ना कुरान की लेकिन आयत नहीं है कि जो एक भी नबी का इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। तो ये इनका इनकार जो है वो काफिर नहीं बनाएगा ना भाई ने अल्लाह से कलाम करेगा, और उस बात का जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। आसान हल है, अल्लाह ताला इनाम देता है। अगर आप सीधे रास्ते पर, आपके पास इनाम होंगे, नहीं तो फिर आप काफिर होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैंडिडेट है आपका कोई? जी मैं भी मैं ये कह रहा हूँ आपको फिर आप पे ईमान लाना जरूरी नहीं है। फिर वो
وہ جو ایک نبی کا انکار ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے تو ایک بھی نبی کا جو انکار کرے تو وہ آپ پہ آپ اپلائی نہیں ہوتا. دیکھو انسان ہے، کمزور ہے، نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین کا ورد کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کس کی اطاعت کرنی ہے. بہت اعلیٰ. ڈیوڈ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے یار محمد احمد بھائی یہ بندے کو نا بلاک کر دیں. ہیں؟ کون سا والا؟ یہ کشمیری صاحب کو چیمہ صاحب حسینی صاحب کشمیری سے کو آپ بچ میوٹ کے کر دیں یا پرماننٹ بلاک نہ کریں بے شک. محمد احمد بھائی میں موڈ بنا دو یار. یہ جو آپ میسج عباس کریں. نام کا بندہ ہے نا، اس کو میں سمجھاتا ہوں لعنت کیا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہو، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، انصاف ہے نہیں، سچ نہ ہے نہیں، یہ لعنت ہے اللہ کی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لعنت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پردے کھولتا ہے، انسان کو صحیح سمجھ آتا ہے، وہ صحیح پہ وہ کٹھے ہو جاتے ہیں، پھر طاقتور بن جاتے ہیں، تو غلط کو کوئی ان کے اوپر غلط مسلط نہیں ہوتا. جیسی عوام ویسے نگرانوں کا آپ کو علم ہے، تو پھر بھی آپ کہتے ہو ہم لعنت ہم پہ ہے، کہنے سے نہیں، اللہ نے ڈالنی ہے، وہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. مطلب آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. گاندھی صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے، لیکن گاندھی صاحب کے فتوے کے خلاف بہت بڑا فتویٰ جو ہے وہ آ چکا ہے عامر نذیر صاحب کے مسلک سے. تو اچھا وہ کیا ہے؟ وہ گاندھی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوا نا، اس یہ کے ہوا نا صحیح. اس کے اوپر جو فتویٰ دیا ہے شام لائی ظہیر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ آج کے بعد گاندھی صاحب کا جنازہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے غامدی صاحب صحیح دور اثر کے مجدد ہیں بھائی، مزہ آ گیا بات سن کے. کمال. یہ دیکھ لو یار آپ کو فون کر لیتے لیکن کسی نبی کا ہمیں مطلب وہ ہو گئے، مطلب درشن ہو گئے. ہاں جی. آج بات کرنی آپ تھی تو فون ہی بیٹھے تھے ابھی. آج میں نے بات کرنی تھی علامہ صاحب کی موجودگی میں. یار اس کا کیونکہ کوئی ایویڈنس بھی دے دیں، کوئی ویڈیو ہے تو چلائیں. ہاں میں سنا دیتا ہوں، ابھی سنا دیتا ہوں. لیکن جو بات سینی صاحب لمبے عرصے سے کر رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی وہی الفاظ سے گاندھی صاحب بول رہے تھے. سر میں ابھی نہیں بلی کرتا ہوں بندے کو. یار نہیں، لیکن یہ جو فتویٰ ہے نا وہ چلیں ٹھیک ہے، پھر وہ جب بات ہوگی لائیو تو پھر وہ ثابت کریں مولوی گے. صاحب آپ نذیر صاحب سے، عامر نذیر سے بات کرتے ہیں نا، تو ان کو پیغام دے دیجیے گا، جا کے اپنے بڑوں کو پیغام دے دیجیے. اگر تو انعام یافتہ ہیں تو آپ میرے ساتھ مقابلہ کرو. اب وہ ہیں خود مغضوب، تو مغضوبوں کے فتوے نہیں لگتے، وہ اپنی فکر کریں. اچھا یہ سنیں جی، یہ گاندھی صاحب کی بات سنیں. جی جی سنائیں. جی مجاہد علی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. میرا سوال یہ تھا کہ تکفیر کے اوپر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی. آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرد کے اوپر وہ نہیں کر سکتے، مطلب بات نہیں کر سکتے، کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، عقیدے کے لحاظ سے کہہ سکتے. تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم میں ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب بھی اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یہ احمدی حضرات ہے. تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز میں کوئی بزنس داخل نہیں کر دی، وہ بے تکلف نماز پڑھی. نماز تو آپ کی نماز ہے. اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ اس کی غلطی واضح کی جائے گی. اس نے اگر کسی عقیدے میں کوئی غلطی پیدا کر لی ہے تو معاملے میں